Please correct it. Who is this girl? Who is this 08 Jan 2021? Please correct it. Hello, my test. My test. Hello, my voice is clear, no? My voice is clear, friends? Yes. So, who is this Jan 8 2021? You please correct your name quickly, otherwise I'll remove. Aryan Gaurav. Aryan Gaurav, you please rename yourself. Supriya Vishwakarma, you please write your GR number. All of you, please write your GR number. If you don't know how to correct yourself, go to Chandan Mandal. You please write your GR number, not serial number. I request everyone not to write your serial number. You have to write your GR number here. I request everyone, Chandan Mandal. Chandan Mandal, you please correct yourself. Please write your GR number. Balakrishna Yadav, Chavan Neha, Gupta Aarti, Kartika Gupta, Khan Hamid. Everybody, I request you have to correct your name. GR number is a must. GR number is must, and we don't have much time in front of us. I cannot waste my time. I'm requesting everyone, you have to write your name in the proper format, otherwise you won't get your attendance. I will not take anybody's serial number over here. I want your GR number and the name in the proper manner. If you don't know how to correct your name, I'm repeating, you please go to participant section, go to participants, you click on your name, there one rename button will come. So you please write the name in the proper format. And this is the time now. I'm going to share my screen. I hope that you are getting the screen over there. Are you getting my screen over there, friends? Please write a big Y there on the screen if you are getting my screen over there. Hamid, Khan Hamid, please write your GR number on the space where it is supposed to. If you are writing there in the chat box, I'm not going to do anything. Now the chat box is open for all. Please note that some students are writing their device name, the password or something else, and such people will be removed from here immediately. Please rename properly.
Okay, children, you are getting my voice clearly in the chat box. Please write an S, a big S over them. And how many of you have not written your name correctly there? I want to start the class now. I don't, only 45 minutes are there. I cannot waste my time. How many of you have not written? चैट बॉक्स में GR नंबर के साथ कितना लो नहीं लिखा? नूर जहान ने चैट बॉक्स में लिखा यस, लेकिन उनका GR नंबर वहां नहीं है. निकिता सखानी उन्होंने सीरियल नंबर लिखा, सीरियल नंबर इज नॉट एप्लीकेबल और GR नंबर ही लिखना है. और प्राची कदम, आपका GR नंबर क्या है? लिखो जल्दी. गुप्ता आरती, आपका डिवाइस का इश्यू है, दैट इज okay. Now in the chat box, give me a message that what we have done in the last class. What we have done in the last class. What was the topic we have done in the last section? No idea. The last session we were talking about the second chapter, that is systematics of living organisms. There we started with the 5 kingdom classifications, right? We have started with the 5 kingdom classifications in the last session. Am I right, friends? Please write a big Y there in the chat box. Yes. And according to the 5 kingdom classification, one scientist, his name is Dan Whittaker, proposed it. R.H. Whittaker in the year 1969 proposed 5 kingdom classification. That is what we have seen last class. His picture is there on the screen right now. And after that, we have seen that according to this 5 kingdom classification, all the living organisms in this world that has been divided or classified into 5 groups, and each group is called as a kingdom. The kingdom Monera, kingdom Protista, Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia. So these are the 5 kingdoms we have seen. And after that, we have seen yesterday, last session, that all these living organisms classified into 5 kingdoms based on certain basic characteristics. ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो भी हमने देखा. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था, एक उनका सेल स्ट्रक्चर का ऊपर, सेल स्ट्रक्चर जो बोलता है दैट इज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. उसके बाद हमने देखा उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, और उसके बाद हमने देखा था रिप्रोडक्शन, एंड फाइनली हमने देखा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ये सब मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया. एंड ये भी मैंने आपको दिखाया था वो दिन, ये जो छोटा सा एक चार्ट मैं आपको दिखाया था, 5 किंगडम का 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कंपैरेटिव स्टडी में मैंने आपको बताया था. और इतना बात करके हमने लास्ट सेशन हमने बंद किया. आज हमको पहला किंगडम से स्टार्ट करना है, किंगडम मोनेरा. Today we are going to study about the kingdom Monera. So यहाँ से हमको start करना है. Before I start this topic, some important informations I want to give you. I want to tell you that now your biology lectures, मैं आपको पहले ही बोला था, आपका क्लास का बायोलॉजी मेरा हाथ में है. I am taking your biology पूरा, ओके. और ए डिविजन का मिसेस नंदिता मोरे विल टेक, सी डिविजन का मिसेस एनेक्स मैथ्यूज विल टेक पूरा. एंड आपका क्लास का एक क्लास ग्रुप आपका क्लास टीचर ने बना दिया. वो क्लास ग्रुप में कल जूम में कैसे ज्वाइन करना है करके मैंने कल एक वीडियो डाला.
मैंने उसमें आपका ये जो आज का लेक्चर का लिंक भी दिया है, लेकिन आगे जाके आप ध्यान में रखना, ये 2-3 दिन में वो लिंक आपको देंगे वो पर्टिकुलर ग्रुप में, लेकिन मेरा पूरा कम्युनिकेशन आपसे होगा अपना बायोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप में। इसलिए आपका किसी का नंबर अगर चेंज होता है, आपका नंबर सिर्फ क्लास टीचर को देके फायदा नहीं, और मेरे को भी नंबर देना और नंबर इधर अपडेट करना जरूरी है। सो यू हैव टू गिव मी योर नंबर whenever you change your number. Okay. And second thing is that when you enter into this classroom, आपको मैंने पहले ही बोला है, वो जो फॉर्मेट जो दिया है, आपका जो जीआर नंबर, आपका नेम, आपका डिवीजन, ये तीनों उसमें बराबर एंटर करके बैठना है कि आपका अटेंडेंस उसमें से होगा। सीरियल नंबर से मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो सीरियल नंबर है, आपका क्लास टीचर का पास जो सीरियल नंबर है, सब अलग अलग है। ओके। और चैट बॉक्स में आप गूगल मीट में जो कर रहे जैसा चैट बॉक्स में आपका नाम नहीं लिखना, आपका कुछ भी अटेंडेंस के लिए आप कुछ भी चैट बॉक्स में नहीं डालना है। आपका जो अटेंडेंस है पूरा सिस्टम जनरेटेड है, आप जूम में कैसे ज्वाइन करता है तभी आपका अटेंडेंस उधर मार्क हो जाएगा। वही अटेंडेंस जब लेक्चर खत्म होगा, आज का दोनों लेक्चर है, दोनों दूसरा लेक्चर खत्म होने के बाद आपका क्लास टीचर को वो भेज देंगे। और सिस्टम जनरेटेड है, वो सिस्टम जनरेटेड में मैं कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं करूंगा, कुछ भी करेक्शन नहीं करूंगा। अगर आप जीआर नंबर लिखा है, आपका अटेंडेंस मिल जाएगा। जीआर नंबर नहीं लिखा तो भी मैं ऐसा ही भेज दूंगा। आपका डिवाइस का नंबर डाला है, आपका अटेंडेंस नहीं मिलेगा। आप कुछ पासवर्ड लिख के रखा तो आपका डिविजन, रोल नंबर, जीआर नंबर और नाम छोड़ के बाकी कुछ भी लिख के रखो, आपका अटेंडेंस आपको लॉस हो जाएगा। ओके। मैं आपको रिपीट करके बोल रहे, आप चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना है, आपका नाम, आप कौन सा राउंड है, ये कुछ मेरा लेना देना देखने का आइटम नहीं है। सो चैट बॉक्स में कुछ भी मैटर ये लिखने का नहीं। चैट बॉक्स में लिखना है सिर्फ आपका, आपसे मैं क्वेश्चन पूछेंगे तभी उसका आंसर लिखने का, दूसरा कुछ भी नहीं लिखने का। ओके। अभी जूम प्लेटफॉर्म में ये लेक्चर चलते रहता है, गूगल मीट में नहीं है। बायोलॉजी का लेक्चर कभी भी गूगल मीट में नहीं जाएगा, वो जूम प्लेटफॉर्म में ही होगा। यू हैव टू अटेंड द लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। दूसरा बात, ये जो गूगल मीट के लिए आपको जो लिंक दिया है, आपको जो लिंक है, जो पासवर्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको रोज रोज ये लिंक पासवर्ड नहीं मिला तो भी आपको टेंशन नहीं लेने का। आपका लेक्चर के टाइम के अनुसार 10 मिनट पहले आके ये प्लेटफॉर्म में बैठने का। You got the point clearly, friends? To please write down the chat box. Is it clear to you this point? एवरी डे आपको लिंक नहीं मिलेगा। आपका टाइम टेबल आप देख लीजिए, टाइम टेबल में बायोलॉजी का लेक्चर है, सीधा जूम में आपका कोई भी पहले का लिंक यूज करो। बायोलॉजी का जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रोज लिंक डालेगा, लेकिन आपका क्लासरूम में नहीं डालूंगा। आप सीधा उधर से या क्लासरूम से, गूगल क्लासरूम से, किधर से भी आपको आपका टाइम टेबल के अनुसार 10 मिनट पहले आके ज्वाइन कर सकता है। गॉट दिस पॉइंट क्लियरली? लिंक नहीं मिला करके किधर भी नहीं बोलना। और बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी का लिंक के बारे में, बायोलॉजी का डाउट है, बायोलॉजी का कुछ भी डाउट है, आप बायोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है और आप पोस्ट करना है। कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड कुछ भी मटेरियल, कुछ भी आइटम, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी, कुछ भी आपका क्लासरूम में पोस्ट नहीं करना है। लास्ट क्लास में मैंने बोला था एडमिशन का जो राउंड जो ग्रुप है, उसमें बायोलॉजी के बारे में कुछ नहीं लिखने का बोला, लेकिन बाय मिस्टेक सम स्टूडेंट्स आर रिटन, ओके लेट इट बी, आई डोंट माइंड। बट आगे आपका क्लासरूम में क्लासरूम में बायोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पूछने का। आपको जो इंफॉर्मेशन पूछना है मेरा बायोलॉजी का ग्रुप में डाल दो, वो मेरे को मिल जाएगा। मतलब आप उसमें प्राइवेट रिप्लाई करके मेरे को डाल दो, मेरे को मिल जाएगा। मैं उसको आंसर टाइम टू टाइम देता रहता है। ओके। So I hope that you are everybody understanding this point. आपका अटेंडेंस आपका हाथ में है। आपने बराबर नहीं लिखा, अटेंडेंस नहीं। आपका जीआर नंबर नहीं लिखा, अटेंडेंस नहीं। आपका नाम बराबर नहीं लिखा, अटेंडेंस नहीं। आपका एक्सेल, गूगल क्लासरूम में जाके एक्सेल शीट चेक करो, आपका नाम कैसा है, आपका जीआर नंबर क्या है, सब इंफॉर्मेशन वहां दिया गया है। सो वो इंफॉर्मेशन के अनुसार आप इधर पूरा फिलअप करना। और एक बार रिपीट करता हूँ,
अगर आपको रीनेम करने को नहीं आता है, गो टू पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स में जाएगा तो सभी स्टूडेंट्स का लिस्ट आएगा, आपका नाम देखिए, आपका नाम का ऊपर क्लिक करो, वहां रीनेम का प्रोविजन है, वो वहां रीनेम क्लिक करके रीनेम करो, ओके मारो, आपका रीनेम हो चुका है। ओके, सो इतना है। नाउ आई एम गोइंग टू द टॉपिक, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। Now, before enter into the topic, we will go for a poll. Get ready for the poll. I am posting one poll right now. Now you see you are getting one poll on your screen right now. Please answer it quickly. You will get only 1 minute, less than 1 minute for that. Quickly answer it. Answer submit करने का। Now 50 seconds over, just 10 minutes to 10 seconds to submit. Now 5, 4, 3, 2, 1, time over. आपका रिजल्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। Now you see what is the question, just read there. Name the character which is not considered as the defining property of living organisms. ये chapter 1 का है, हमने लास्ट क्लास में एक क्लास में देखा था। So what is the correct answer? And those who are not able to listen, please check your device. आपका डिवाइस में आपका उसका स्पीकर आपने ऑन नहीं किया, इसलिए आपका डिवाइस में एक स्पीकर है, मैं आपको दिखाता हूँ ये स्पीकर कहाँ होता है। अगर मोबाइल है तो मोबाइल में देखिए, मोबाइल में इधर एक स्पीकर आएगा, ये मैं स्पीकर बंद करके रखा है, देखिए इधर, ये स्पीकर आपका ऑन करो, आपका आवाज आएगा। ओके, नाउ वी हैव सीन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें एक कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर रहे करके लिखा है। ओके, हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, या कैन यू हियर माय वॉइस? यस, ओके, सो आपका डिवाइस आप उनका स्पीकर ऑन करो, आपका वॉइस आ जाएगा। You are not able to hear. Okay, now what is the answer over here? Now we have seen that metabolism is a character. In all the living organisms, we can notice that various metabolic activities are going on. So metabolism is a character that defining as a living organism. It's a property of living organism. Second is that cellular organization. In all living organisms, you can notice that there are cells. Without cell, no living organisms. Okay. Okay, so all the living organisms, we can say they are having the cell. Without cell, no living organism. So living character, cellular organization. Consciousness. Consciousness means what? Irritability. All the living organisms, whether it is a plant or animal, they are responding to stimuli. So they are conscious, and the consciousness is there. They are responding to stimuli, or they are showing irritability. That is also a character which is defining. Then what is reproduction?
Reproduction is also, you can see that in all living organisms, it is there. It is there. But do you think that this is a defining character? Living organism है करके define करने का एक character है क्या reproduction? Which is the correct answer over here? Which is the correct answer over here? Chat box में लिखो, which is the correct answer? The correct answer आपने जो मार्क किया है कॉन्शियसनेस करके 43% लो बोला है, बट द करेक्ट आंसर इज रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपने देखा है सम एनिमल्स में, अभी स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स में, देयर आर सम ह्यूमन बीइंग्स हु आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। और मूल के बारे में बात किया था, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं होता है। और वर्कर ड्रोन्स के बारे में बात किया, वर्कर हनी बी के बारे में बात किया था, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। दैट मीन्स reproduction is not a defining character. I hope that you understood this point. Okay, reproduction is not a defining character. Now this poll I'm going to stop. Now I come to the topic. The character is that now kingdom Monera I'm going to explain. Students are not able to know how, or you are not knowing that how to use the chat box. चैट बॉक्स के लिए वापस आप पार्टिसिपेंट्स में जा और चैट करके, मतलब उधर एक बटन है, मोर करके एक बटन है, क्लिक ऑन मोर, देयर यू कैन सी दैट देयर इज प्रोविजन फॉर चैट इन योर मोबाइल, देयर इज अ बटन कॉल्ड मोर, देयर इफ यू क्लिक यू कैन सी देयर इज अ बटन फॉर चैट, so by using that you can communicate with us. Okay, now the first kingdom is then Kingdom Monera. The first kingdom is then Kingdom Monera. Now we are going to see about Monera. So what kind of living organisms are there in Kingdom Monera? Can you tell me what kind of living organisms are there in Kingdom Monera? हमने last class में देखा था. All the members who are there in Kingdom Monera, we can say they are prokaryotes. They are prokaryotes and they are normally unicellular. Are writing there in the notebook at least? आपका notebook में आप note कर रहे क्या? क्योंकि आप लोग कुछ भी इधर chat box में लिखता नहीं है, कुछ भी messages आप लोगों से नहीं आ रहे. Because you are not responding, I don't know why. Today, those who are sitting in this classroom is first time attending. You are attending first time biology lecture? No. So you know how to use the chat box, how to respond. Then what happened? Okay. So in the last session, we have seen that in Kingdom Monera, whatever living organisms are there, they are all prokaryotes. They are all prokaryotes. Mostly they are bacteria. Now we can see that in this kingdom, mainly bacteria present. And this bacteria, if bacteria के बारे में बात करेगा तो हमको बोल सकते हैं bacteria, you can see that this is an abundant one. सब जगह पे you can see that this bacteria. आप सोइल में नीचे जाके ग्राउंड में जाके आपका ग्राउंड से थोड़ा सोइल हाथ में लीजिए, वो पूरा उसका अंदर पूरा बैक्टीरिया है. That means सब जगह पे बैक्टीरिया है. You can see that the abundant microorganisms है bacteria and it is present everywhere. It is present everywhere. और दूसरा एक important character यही है, आप देख लीजिए, a bacteria can live there in all conditions. All conditions they can live there. They can live there in extreme habitats also. Extreme habitats बोलेगा तो even hot area, hot spring है, उधर भी है, desert है, वहां भी है, ocean का एकदम deep में जाइए, वहां भी है, snow area पे जाइए, उधर है. So सभी area पे आपको बैक्टीरिया को देखने को मिलेगा. So this bacteria can be seen, or the Kingdom Monera members you can see everywhere. Okay, and they are seen in extreme habitats such as hot springs, desert,
snow, even deep oceans. And another important character you have to remember that these are parasites. These are parasites. Parasites क्या है? Parasites are those organisms which are depending on other living organisms for their food. So you can see that all these members, all these Monera members, they are seen everywhere and most of them are parasites. अभी हमको ये देखना है किंगडम मोनेरा के बारे में कुछ कैरेक्टर्स मेरे को बोलना है, वो आगे का स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा. आपका टेक्स्ट बुक में देखो तो पेज नंबर 10 में फॉलो कर रहे हैं अभी. सो डिपेंड्स अपॉन द शेप. ये बैक्टीरिया का शेप देखेगा तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आई टोल्ड यू? डिपेंड्स अपॉन द शेप. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देयर? 4 different types of bacteria there. They are 1 coccus. फर्स्ट वालों को बोलता है कॉकस. कॉकस बोलेगा तो देखिए ये शेप में होता है. नाउ यू सी दिस शेप, दिस इज कॉल्ड एज स्फेरिकल शेप. स्फेरिकल शेप में जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया को हम बोलता है कॉकस. आपका नोटबुक में नोट करके रखेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टडी, देन इजी फॉर यू टू स्टडी. सो स्फेरिकल शेप में जो बैक्टीरिया है इसको हम बोलता है कॉकस. ओके. और नंबर 2 देखिए, रोड शेप. एक रोड का जैसा जो दिखता है, ये रोड शेप बैक्टीरिया को बोलता है बासिलस. सेकंड वाला इज दैट, सेकंड टाइप इज दैट बासिलस. नंबर 3 इधर देखिए, एक कॉमा का जैसा, नहीं तो एक किडनी का जैसा जो बैक्टीरिया रहता है, कॉमा शेप या किडनी शेप, उसको बोलता है विब्रियम. और लास्ट जो होता है, एक स्प्रिंग का जैसा जो होता है, इसको बोलता है स्पाइरिलम या स्पाइरल का जैसा. सो डिपेंड्स अपॉन द शेप, 4 different types of bacteria there. Depends upon the shape, 4 different types of bacteria there. I repeat, राउंड शेप में जो होता है या स्फेरिकल शेप में जो होता है उसको बोलता है कॉकस. और रोड शेप जो होता है उसको बोलता है बैसिलस. कॉमा शेप और किडनी शेप जो होता है उसको बोलता है विब्रिया या विब्रियो. एंड लास्ट द स्पाइरल शेप जो होता है उसको बोलता है स्पाइरिलम. Now you see the structure of this bacteria. Structure, if you look at the structure of the bacterium, is very simple. Bacterium का structure देखा तो this is very simple, but we can see that the structure, internal structure means behavior या इसका metabolic activity आप देखेंगे ना, it is little complex. अब इधर देखिए, ये है एक बैक्टीरियम. ये बैक्टीरियम को देखा तो आपको मालूम पड़ेगा एकदम आउटर मोस्ट में आपको एक कवर देखने को मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल. और उसका अंदर एक येलो कलर का आप पिक्चर आपको देख रहे, आप देख रहे, उसको बोलता है सेल वॉल. उसका अंदर एक ग्रीन कलर का लेयर मिलता है आपको, उसको बोलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसका अंदर एक ब्लू कलर रीजन है, उसको बोलता है साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म का अंदर सेंटर में देखिए एक स्ट्रक्चर आपको देख रहे, एक वायर का जैसा स्ट्रक्चर देख रहे. ये वायर लाइक स्ट्रक्चर वी कैन से द सर्कुलर डीएनए. ये बैक्टीरिया में, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एक सर्कुलर डीएनए होता है. There is only one circular DNA, but there is no nuclear envelope. That is why we say there is not well-defined nucleus in prokaryotes. Prokaryotes में well-defined nucleus नहीं है, लेकिन उसका nuclear material है. Nuclear material को बोलता है nucleoid. So this is called as nucleoid. हमको क्रोमोसोम बुलाने को भी नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं है. So the term we are using over here is called nucleoid. What is the term I said? Write the first letter quickly. Please write the first letter quickly there. What is the term? Nucleoid. Very good. Okay. So there is no well-defined nucleus, but genetic material is there, and that genetic material is known as nucleoid. और उसके अलावा you can see that there is a ribosome. राइबोसोम है इसमें. राइबोसोम के बारे में बात करें तो एक पॉइंट आपको याद रखना, इसमें जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम 70S का होता है. द राइबोसोम विच इज ओवर हियर इज कॉल्ड 70S राइबोसोम. ये प्रोकैरियोट्स का एक टिपिकल कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम.
and there is an extra chromosomal genetic material also over here, and this is known as plasmid. Okay, page number 10. Page number 10. तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो देयर. मैं जब राइबोसोम के बारे में बात करेगा तभी आपको मैं बोलता हूँ. प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है इसको बोलते हैं 70S, को सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के हिसाब से बोलता है. और 80S राइबोसोम अपना बॉडी में होता है, यूकैरियोट्स में होता है. और प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है इसको 70S बोलता है. तो सभी प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम है. ओके, वो ध्यान में रखना हमेशा. अपना सेल यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है दैट इज 80S. अभी एक क्वेश्चन मेरे को पूछ रहे हैं, यूज ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल. न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल. कोई भी सेल आप लीजिए, आपका बॉडी को कंट्रोल करने वाला आपका ब्रेन है. जैसा एक सेल का ब्रेन है उसका न्यूक्लियस. ओके, समझ में आया? दीपक कुमार, आपको समझ में आया? सॉरी, नॉट दीपक, वेंकटेश, आपको समझ में आया वो पॉइंट? द यूज ऑफ न्यूक्लियस इज दैट इज द स्ट्रक्चर विच कंट्रोलिंग द सेल. ओके, सो ये है राइबोसोम, सॉरी ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर. नाउ इफ यू लुक एट, अब इधर देखा तो आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिलता है. उसका न्यूट्रिशन के बारे में बात करेगा तो ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन के बारे में बात करेगा तो you can see that there are two types of nutrition. One is called autotrophs. Two types of nutrition आपको देखने को मिलेगा. One is called autotrophs. Autotrophs means they are preparing their own food. Their own food मतलब raw material use करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो raw materials है, ये raw material use करके, सोलर एनर्जी यूज करके अपना खुद का खाना वो बनाएगा तो that is called as autotrophs. So ये बैक्टीरिया है. Some are autotrophs. Bacteria are autotrophs because they prepare their own food from the inorganic material. At the same time, there are heterotrophs also. Majority of them are heterotrophs. Majority of them are heterotrophs. Heterotrophs क्या है? Heterotrophs क्या है? Depending on others for their food. Depending on others for their food. That is what is called a heterotrophs. So मैं आपको ये स्लाइड में इतना बता दिया. इनका जो स्ट्रक्चर जो बोलता है वेरी सिंपल है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या उनका बिहेवियर आप देखो तो वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. और बाद में मैंने बोला उनका न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो दो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है. वन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. वहां एनर्जी यूज करके, सोलर एनर्जी या केमिकल रिएक्शंस का एनर्जी यूज करके इनऑर्गेनिक मटेरियल से खाना बनाता है. दूसरा, आई टोल्ड यू मेजॉरिटी ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफ्स. That means they cannot synthesize their food. They're depending on the producers. They're depending on other living organisms for their food. Okay, they depend on other organisms or even from the dead remains of plants and animals they get the food. So we call them as heterotrophs. Okay, वेंकटेश मैं रिपीट कर रहे हैं, आपने रिपीट करने को बोला, मैं रिपीट कर रहे हैं. न्यूक्लियस का फंक्शन आपका बॉडी कंट्रोल करने के लिए, आपका ब्रेन कैसे काम करता है, जैसा आपका बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस फंक्शन करता है. सो न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ ए सेल. न्यूक्लियस नहीं है वो काम फंक्शन नहीं करेंगे. जैसा आपका बॉडी में ब्रेन फंक्शन नहीं होता तो आपका बॉडी डेड बॉडी का जैसा होता है. जस्ट लाइक दैट. आई होप दैट यू अंडरस्टूड नाउ. नाउ आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इट सेज दैट क्लासिफिकेशन ऑफ these living organisms. Please note, this is not there in the notes. Please write there in the notebook. ये आपको नोटबुक में लिख के रखना पड़ेगा समरी में. ये आपका नोट्स में मैंने दिया नहीं है. अभी बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई किया? दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं बेसिकली. वन इज कॉल्ड एरेके बैक्टीरिया एंड सेकंड इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया. ओके, सो ये जो क्लासिफिकेशन बेसिकली बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन, बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, मतलब कैसे ये बैक्टीरिया इवॉल्व हो गया है वो हिसाब से बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. वन इज कॉल्ड एरेके बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर हियर? मेजर कितना टाइप होता है? टू टाइप्स होता है. वन इज कॉल्ड, पहला वाला क्या बोलता है? एरेके बैक्टीरिया, और दूसरा बोलता है यू बैक्टीरिया. एरेके बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. समझ में आया पॉइंट? Now I'm going to talk about archaea bacteria.
Archaebacteria we can notice that is mostly seen there. मैं detail next slide में बताऊंगा. So mostly these Archaebacteria are seen there in extreme climatic conditions. Extreme climatic conditions में देखने वाला बैक्टीरिया है Archaebacteria. ये एक्सट्रीम क्लाइमेट में होने के कारण इसको एक दूसरा नाम भी है, वो उसका नाम है एक्सट्रीमोफिलस. ओके, सो इट इज आल्सो नोन एज एक्सट्रीमोफिलस, बट द मीनिंग इज दैट ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में देख रहे हैं. अभी ये जो बैक्टीरिया को डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स. दिस Archaebacteria आर ऑफ 3 टाइप्स, डिपेंड्स अपॉन देयर प्रेजेंस. मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है वो हिसाब से 3 टाइप होता है. पहला वाला बोलता है हेलोफिल्स. हेलोफिल्स हेलोफिल्स बोलते हैं ज्यादा सोल्टी एरिया में देखने वाला बैक्टीरिया है हेलोफिल्स. हेलोफिल्स कहाँ, कौन सा एरिया पे दिखता है? एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, सोल्टी लेक, सोल्टी एरिया में दिखता है. समझ में आया? आर यू फॉलोइंग मी? आर यू क्लियर? हेलोफिल्स आर सीन देयर इन सोल्टी लेक और सोल्टी एरिया. हाई सोल्टी एरिया में दिखता है हेलोफिल्स. दूसरा है थर्मोअसिडोफिल्स. थर्मोअसिडोफिल्स कहाँ होता है? हाई टेम्परेचर में. हाई टेम्परेचर में देखने वाला है मतलब हॉट स्प्रिंग्स. हॉट स्प्रिंग्स में जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया को बोलता है थर्मोअसिडोफिल्स. थर्मो बोले तो टेम्परेचर, ओके, थर्मोअसिडो, हेलो बोले तो सॉल्ट. सो थर्मोअसिडोफिल्स हाई टेम्परेचर एरिया में दिखता है. एंड तीसरा है मेथनोजेंस. ये मेथनोजेंस आपको एकदम पॉइंट में याद रखना, ये एनिमल्स का स्टमक में होता है, स्पेशली काउ, बफेलो. ये एनिमल का गट ऑफ रूमिनेंट्स. गट ऑफ रूमिनेंट्स, गट ऑफ रूमिनेंट्स बोले तो जो इंटेस्टाइनल एरिया है, तो ये गट ऑफ रूमिनेंट्स में कुछ बैक्टीरिया रहता है. वो बैक्टीरिया वहां बैठ के क्या करता है, काउ और बफेलो एनिमल्स का, उनका स्टमक में बैठ के मीथेन का गैस प्रोड्यूस करता है. ओके, मीथेन का गैस को प्रोड्यूस करना, ये बायोगैस भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम लोग काउडंग यूज करके बायोगैस प्रोड्यूस करता है. सो ऐसा वाला बैक्टीरिया है मेथनोजेंस. मैं रिपीट कर रहे हैं, कहाँ सॉल्टी, सॉल्ट है, हाई सॉल्ट है, सॉल्टी लेक है, वहां हेलोफिल्स रहता है. हाँ, कहाँ टेम्परेचर सो हाई है लाइक हॉट स्प्रिंग्स, वहां थर्मोअसिडोफिल्स रहता है. और काउ, बफेलो, ये जो एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनका गट में और गट ऑफ रूमिनेंट्स में कुछ बैक्टीरिया रहता है. ये बैक्टीरिया का नाम है मेथनोजेंस. और ये मेथनोजेंस कैसे इंपॉर्टेंट है? दे कैन प्रोड्यूस मीथेन गैस. मैं आगे का स्लाइड में आपको डिटेल दिखाऊंगा ये पार्ट. ओके, नाउ सेकंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया दैट इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. आपको मैं पहले ही बोला है ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स क्या है? दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. ये 2 टाइप होता है. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स मींस दे आर ड्रॉइंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. खाना बनाने के लिए सोलर एनर्जी अगर यूज करता है, देन दे आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. और कीमोसिंथेटिक है दूसरा टाइप. वो क्या है? व्हाट इज कीमोसिंथेटिक? मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में? कीमोसिंथेटिक मैंने क्या बोला था? What I told you in the last section about chemosynthetic autotrophs. या सल्फर बैक्टीरिया जैसा जो बैक्टीरिया है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एनर्जी विल बी रिलीज, एंड बाय यूजिंग दैट एनर्जी दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. समझ में आया? सो दे आर कॉल्ड कीमोसिंथेटिक. सो ऑटोट्रॉप्स 2 टाइप होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. अभी यू बैक्टीरिया दूसरा एक टाइप है हेटेरोट्रॉप्स. दूसरे का ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. वो भी 2 टाइप होता है. वन पैरासाइट. पैरासाइट बोलेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ड्रॉ करता है, दैट इज अ पैरासाइट. अपना बॉडी में अस्कैरिस होता है, गर्ल्स लाइज होता है, ये मॉस्किटो आता है. सो ये सब क्या है? अपना पैरासाइट है. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ड्रॉ करने वालों को बोलता है पैरासाइट. सो बैक्टीरिया में भी, यू बैक्टीरिया में भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आई मीन बैक्टीरिया क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ड्रॉ करता है. दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट. एट द सेम टाइम
डेड बॉडी से एनर्जी ड्रॉ करता है कुछ लोग। अभी आपको मालूम है डिकम्पोसिस के बारे में बोले तो बैक्टीरिया इज द डिकम्पोजर हम बोलता है, दे आर द स्कैवेंजर्स बोलता है। सो दे आर डिकम्पोजिंग ऑल द डेड बॉडीज इन द वर्ल्ड। अभी आप जो डेड बॉडीज है, जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है, ये सबको डिकम्पोज करने वाला कौन है? बैक्टीरिया है। ये कौन सा बैक्टीरिया होगा? वो बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, लेकिन वो कौन सा? हेटरोट्रोप्स है। हेटरोट्रोप्स में कौन सा है? साप्रोफाइट्स। दे आर साप्रोफाइट्स। इतना आपको क्लियर हो गया? ये चार्ट आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स? प्लीज टेल मी ए बिग वाई। प्लीज टेल मी ए बिग वाई। Yes. Now I go to the next slide. The next slide is that Archaebacteria. मैं ऑलरेडी आपको ये सब कुछ बोल चुका है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलेगा। आप देखिए, रिपीट कर रहे थे पॉइंट्स। ये Archaebacteria है। Archaebacteria देखिए, हाइलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मेथनोजेंस। ओके, कौन सा हैबिटेट में रहता है? देखिए, हार्शेस्ट क्लाइमेट, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने वाला है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। अभी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस बोलेगा तो एक्सट्रीम सॉल्ट, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, दिस इज कॉल्ड हाइलोफिल्स। समझ में आया? मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बताया है, इसलिए आप इधर फास्ट जा सकते हैं। एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रहने वाला कौन है? हाइलोफिल्स। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में रहने वाला कौन है? प्लीज राइट द फर्स्ट लेटर देयर। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर हॉट स्प्रिंग में रहने वाला कौन सा टाइप बैक्टीरिया है? थर्मोएसिडोफिल्स। वेरी गुड। और मार्शी एरिया में और एनिमल का गट में रहने वाला कौन सा है? मार्शी एरिया और इवन एनिमल का गट कौन सा है? मेथनोजेंस। समझ में आया? मार्शी एरिया बोलेगा तो आपको मालूम है, जो मागी में वगैरह आप जाएगा तो उधर है ना, एक पर्टिकुलर स्मेल आता है, उधर मैंग्रोव्स रहता है। ये मैंग्रोव्स रहने वाला जगह है मार्शी एरिया। तो उधर एक पर्टिकुलर स्मेल भी आता है, उधर मीथेन गैस का स्मेल आता है। ओके, नाउ यू कैन सी दैट ये बैक्टीरिया को एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो उनका सेल वॉल है ना, दैट इज मॉडिफाइड इन सच ए वे दैट दे कैन सर्वाइव एवरीवेयर। उसको कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में उसको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, बिकॉज उनका सेल वॉल उतना वेल डिफाइन है। उसका वेल मतलब क्या बोलता है, या वेल डिफाइंड और वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सर्वाइवल देयर इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब ये आप देख लीजिए, मैं आपको ये बोला था मेथनोजेंस कॉमन एग्जाम्पल, गट्स ऑफ रूमिनेंट ऑफ एनिमल्स कौन सा है? काउ, buffalo, etc. They produce methane gas or biogas. Okay, from the cow dung, methane gas और biogas produce करने वाला बैक्टीरिया है मेथनोजेंस। इतना क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर है आपको? दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू? हमारा टाइम खत्म हो रहा है अभी, दूसरे लेक्चर के लिए मेरे को छोड़ना पड़ेगा, अभी शाम को मिलेगा। सो आपको समझ में आया? अभी दूसरा देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, क्विकली देखिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। देखिए ट्रू बैक्टीरिया क्या है? they have, what are the characteristics they have? Just look at, they have a rigid cell wall। या ध्यान में रखना, क्या अपना टाइम खत्म हो गया? ओके, they have a rigid cell wall, 5 मिनट बाकी है। rigid cell wall and they have flagellum। फ्लैजेलम बोलेगा तो आपने, मैं प्रीवियसली एक पिक्चर देखा था, उसमें एक हेयर का स्ट्रक्चर आपने बहुत लंबा स्ट्रक्चर देखा था। ओके, हाँ बोलिए ना, क्या काम करना है, जल्दी बोल। बोलो ना, क्या काम करना है क्लास खत्म करने के पहले? जीआर नंबर सभी स्टूडेंट्स को अपना गूगल क्लासरूम में मिलेगा, वहां दिया है। जीआर नंबर क्लासरूम में है, बायोलॉजी का क्लासरूम में है। कोई भी स्टूडेंट वो डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को पूछ सकता है, उसको मिलेगा आपको उधर। ओके, नहीं तो मैं बाद में डाल देता हूँ जीआर नंबर, अगर आपको समझ में नहीं आते तो। ओके ओके, सो इन ट्रू बैक्टीरिया, मतलब ये जो यू बैक्टीरिया जो बोलता है, दैट इज कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। ये ट्रू बैक्टीरिया, we can see that they have a rigid cell wall and they have a flagellum। ये पॉइंट्स रिपीट करने का जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी यू नो। और इसमें ऑटोट्रोप्स होता है
ऑटोट्रॉप्स दो टाइप है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, ऑलरेडी मालूम है। और हेट्रोट्रॉप्स आपको मालूम है, ये सब कुछ मालूम है, इसलिए मैं ये स्लाइड ज्यादा डिटेल नहीं बात करने कर रहे हैं। आपको जो पॉइंट्स मालूम नहीं है वो मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। ओके, अभी ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात करना है। ये जो सेशन में इन द आफ्टरनून में मतलब 4:30 का टाइम में एक्सप्लेन करूंगा। इज इट ओके फॉर यू स्टूडेंट्स? यहां से यू बैक्टीरिया से मैं आफ्टरनून आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। यू गॉट इट क्लियरली? yes or no, please you tell me there in the chat box. So मैं यहाँ बंद कर रहे हैं, अभी आपको दूसरा क्लास के लिए जाना है। मेरे को और 5 मिनट टाइम है, लेकिन मेरे को एक थोड़ा इंस्ट्रक्शन आपको देना है। शाम को 4:30 को है नेक्स्ट लेक्चर, ध्यान में रखना। 4:15 को मैं ये ओपन करके रखेंगे। 4:15 से आपको ज्वाइन कर सकता है, बट आपका जीआर नंबर आपको किसी को मालूम नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज डालो, मैं आपको आपका जीआर नंबर बताएगा। ओके, आई विल टेल यू द जीआर नंबर इफ यू टेल मी। Otherwise, you can tell me right now. I will check. Okay, that I will tell you later. आप व्हाट्सएप में मैसेज डालो, मैं आपको जीआर नंबर बता देता हूँ। ओके, प्लीज राइट द जीआर नंबर, नेमिंग एवरीथिंग प्रॉपरली करो, क्योंकि as a division, as a class, you are coming first time, so there are some technical issues over there. Sarojini, Ganesh, प्राची, अंचल, आदित्य, सैयद, ये सभी लोगों को जीआर नंबर नहीं है। नूरजहान शेख, ओके, बहुत लोगों को जीआर नंबर नहीं है, इसलिए आपको अटेंडेंस मिलना बहुत मुश्किल होगा अभी। लेकिन आफ्टरनून का जो लेक्चर है, 4:30 का जो लेक्चर है, उसमें आपका जीआर नंबर बराबर लिखकर ज्वाइन करना। अभी टाइम पर ज्वाइन करना, सो अपना टॉपिक टाइम पर खत्म हो जाएगा। ओके, आपको किसी को कुछ भी तकलीफ है तो मैं अभी आपको आपका जो सिस्टम अनम्यूट करने का प्रोविजन दिया हुआ है, आपका माइक ऑन करके आपको बात कर सकता है। मुझे किसी को मुझे कुछ बात करना तो अभी ओपन करो, अनम्यूट करो, देन यू कैन टॉक। सर मैंने डाला है अपना जीआर नंबर। जीआर नंबर आप क्या नाम है आपका? आंचल विश्वकर्मा। लेकिन जीआर नंबर क्या है, कितना है जीआर नंबर, क्या है आपका? हेलो सर सर, हमें कॉलेज का जीआर नंबर कहाँ मिला? जीआर नंबर गूगल क्लासरूम में है, आपको नहीं मिला गूगल क्लासरूम में? आपको ये नहीं है सर एक जन प्लीज। गूगल सर सीरियल नंबर नहीं डाल सकते? सीरियल नंबर नहीं होगा। क्या आप लिखो रिपब्लिक जीआर नंबर सुनिए प्लीज। जीआर नंबर आपको आपका क्लास से मिलेगा। अपलोड कर दे, प्लीज लिसन, अपलोड कर देना इसका फटाक से। प्लीज लिसन। सर जीआर नंबर आपका क्लासरूम से मिलेगा, अगर नहीं मिलते तो मैं आपको आज शाम को जो लेक्चर है उसके पहले ही आपका व्हाट्सएप अपना बायोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, चलेगा? सर आप एक काम करो, व्हाट्सएप पे ही डाल दो, क्योंकि ये लोग ऐसे सुनने वाले नहीं है। आप व्हाट्सएप पे ही डालो सबको। वही मैं बोल रहे हैं। यस सर। 4:30 का लेक्चर का पहले व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपका जीआर नंबर, आपका नेम ये डाल देता हूँ, ठीक है? इसे क्लियर? यस सर। Okay, so then we will leave right now. Now it is exactly 2:15. Exactly 2:15 मेरे को टाइम पर छोड़ना है, टाइम पर स्टार्ट करना है, इसलिए मैं सभी लोगों को थैंक यू सर। सभी लोगों को हमेशा रिक्वेस्ट करता है टाइम पर आना है। आप लेट होते तो आपको तकलीफ में। आई विल स्टार्ट द लेक्चर एट ऑन टाइम। अरे कोई तो एक लड़की है भिंडी, हर बार बीच में टोकते रहती है। ऑन टाइम स्टार्ट करेंगे, ऑन टाइम बंद करेंगे। नाउ यू टेक केयर, गो एंड एंजॉय योर नेक्स्ट लेक्चर। After that we will meet at 4:30 sharp. Okay then, bye bye, take care, bye.